హైదరాబాద్ లో ఉగ్రకోణంలో మరొకరిని అరెస్ట్ చేశారు పోలీసులు. పరారీలో ఉన్న సల్మాన్ ను పోలీసులు పట్టుకున్నారు. హైదరాబాద్ లో మొత్తం ఇప్పటివరకు 6గురిని అరెస్ట్ చేశారు అధికారులు. హైదరాబాద్ ఉగ్ర కదలికల్లో కీలక అంశాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. హైదరాబాద్ లో ఇప్పటికే 5గురిని అరెస్ట్ చేశారు పోలీసులు. మధ్యప్రదేశ్ ఏటీఎస్, తెలంగాణ కౌంటర్ ఇంటెలిజెన్స్ ల జాయింట్ ఆపరేషన్ నిర్వహించాయి. అయితే కేంద్ర నిఘా వర్గాల సమాచారంతో హైదరాబాద్, భోపాల్లో సోదాలు చేశారు అధికారులు. హైదరాబాద్ లోని ఒక మెడికల్ కాలేజీ హెచ్ఓడీగా పనిచేస్తున్న మహ్మద్ సలీం, అలాగే ఎంఎన్సీ కంపెనీలో క్లౌడ్ ఇంజనీర్ గా పనిచేస్తున్న అబ్దుల్ రెహమాన్, పాత బస్తీలో డెంటిస్ట్ గా పనిచేస్తున్న షేక్ జునైద్ లను అరెస్ట్ చేశారు. ఇక రోజువారీ కూలీలు మహ్మద్ అబ్బాస్, హమీద్ లను సైతం అదుపులోకి తీసుకున్నారు. మరో రోజువారీ కూలీ మహ్మద్ సల్మాన్ పరారీలో ఉన్నాడు. తాజాగా ఇవాళ అతన్ని కూడా అరెస్ట్ చేశారు పోలీసులు. అలాగే నిందితుల నుంచి ఎయిర్ పిస్టల్స్, అలాగే బుల్లెట్స్, కత్తులు కూడా స్వాధీనం చేసుకున్నారు పోలీసులు. పట్టుబడ్డ వారికి హిజ్బుత్ తహ్రీర్ సంస్థతో సంబంధాలున్నాయని అనుమానిస్తూ ఉన్నారు. నిందితులంతా మారు పేర్లతో చలామణి అవుతున్నట్టుగా గుర్తించారు. కేంద్ర నిఘా వర్గాల సమాచారంతో 3 రోజుల పాటు హైదరాబాద్ లో ఆపరేషన్ నిర్వహించారు. అరెస్ట్ అయిన 6గురిలో డెంటిస్ట్, డాక్టర్ ఒక ఆయన ఉన్నారు. అలాగే ఆయన భార్య ఏమంటున్నారో దానికి సంబంధించి మరిన్ని వివరాలు మా ప్రతినిధి కిరణ్ అందిస్తారు లైవ్ లో. నళిని, ప్రస్తుతం ఎవరైతే డెక్కన్ సంబంధించిన కాలేజ్ సంబంధించిన ఎవరైతే హెచ్ఓడి ఉన్నారో సలీం సతీమణి ప్రస్తుతానికి మనతో పాటు ఉన్నారు. కేంద్ర నిఘా వర్గాల సమాచారం మేరకు హైదరాబాద్ లో యాంటీ టెర్రరిజం స్క్వాడ్ సంబంధించిన భూపాల్ పోలీసులు, అలాగే హైదరాబాద్ ఇంటెలిజెన్స్ పోలీసులు సంయుక్తంగా ఆపరేషన్ చేయడం జరిగింది. ఇందులో భాగంగా గోల్కొండలోని బడా బజార్లో సలీం ఎవరైతే ఉన్నారో, ప్రధానంగా ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్నారో అతనికి సంబంధించిన కుటుంబ సభ్యులు ఉన్నారు, వారి సతీమణి ఉన్నారు, వారితో మాట్లాడదాం. వాస్తవంగా అసలు ఏం జరిగింది, అలాగే ఎవరైతే నిఘా వర్గాలు కావచ్చు, అలాగే పోలీసులు ఎంటర్ అయినప్పుడు ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ ఉంది, వారి భర్తతో ఏం మాట్లాడడం జరిగింది, ఇదే అంశం మనతో మాట్లాడేందుకు సలీం సతీమణి ఉంది, ఆమెతో మాట్లాడదాం. మేడం, आप बोलिए, पुलिस लोग कितने लोग आए सुबह से और क्या बोले थे, एंटर होने के बाद क्या मसला चल रहा था? जी, मॉर्निंग में वो लोग आए और डायरेक्ट आके उन्होंने डोर पे नॉक करा और मेरे हस्बैंड बाहर ही थे. पहले ये लोग, मेरा बेटा, बच्चे और हस्बैंड जो है वो स्विमिंग के लिए जा रहे थे. उन लोग रास्ते में उनका बाइक रोके और उनको वैसे ही घर लेकर आए. घर लेके आने के बाद डोर तेजी से नॉकने लगे, जैसे इस तरह से नॉक कर रहे थे जैसे बिल्कुल अनसिविलाइज्ड हो. दे डोंट नो हाउ टू नॉक द डोर. और मैं कोई नोटिस नहीं था, उनके पास कुछ नहीं था. वो डायरेक्ट एंटर हुए. मेरे हस्बैंड मेरे को मौका दे रहे थे कि मैं स्कार्फ पहन के आ जाऊं, तो उन्होंने स्कार्फ पहन के आने का भी मौका नहीं दिए. मेरे हस्बैंड को इतनी जोर से पुश करे अंदर, ये फौरन बाहर गए, अंदर आ गए. और अंदर आने के बाद वो लोग बस बैठ गए. मुझसे कहा कि अंदर चल के बैठिए. 2 लेडी थे, वो अंदर लेके गए मुझे. अम्मा आप शांत हो जाइए, कोई बात नहीं है, ऐसे ही मिलने आए. इस तरह की बात करके मैंने कहा बताइए तो आप लोग क्यों आए हैं, कौन लोग हैं, कुछ तो कहिए. तो कुछ नहीं बोले, हम लोग ऐसे ही चाहे, इन लोग हमको कुछ नहीं मालूम. वो 2 कांस्टेबल यूं ही बोलते रहे. फिर उसके बाद मैं अंदर बैठी रही और वो लोग बाहर मेरे हस्बैंड से सवाल करते रहे. उसके बाद मुझसे बच्चों के कमरे में गए और पूरे कमरे की उनके बुक्स, उनके पूरे कपड़े नीचे फेंक दिए, उनका पूरा सामान नीचे फेंक दिया. एक एक घर का एक एक सामान उन लोगों ने बिल्कुल तहस नहस कर दिया, उठा के ये वो. ठीक है, हम लोग, मैंने कहा ठीक है, हम आप लोगों का हेल्प करते, करिए आपको जो करना. बच्चों के छोटे छोटे टॉयज मिले, जिसमें मेरा बड़ा बेटा एक स्कूल में देखा था कि भाई बलून का एक वो हुआ, तो उसमें बलून को मार रहे थे, तो बच्चे का हुआ कि पापा मैं नहीं मार पाया, अब्बा मेरी भी इच्छा है, मैं भी मारता हूँ, तो पापा मुझे भी लाके दीजिए एयरगन, मैं भी करूँगा. तो हम लेके आए. तो जो बड़े के पास आता है वो हमारे छोटे को भी चाहिए होता है, तो ये ऐसा सोच के दोनों के लिए लेकर आए. अल्हम्दुलिल्लाह, हमने सोचा भी नहीं था कि वो बच्चों के टॉयज को इतना ज्यादा हाईलाइट कर देंगे, इतना हाईलाइट कि वो बच्चों का टॉय है, बच्चे खेलते हैं उससे. लिटरली हमारे पास वो रखा हुआ है कि इवन बच्चों ने कभी उससे पिजन नहीं मारा. उनके लिए बिल्कुल अलाउड नहीं है कि नहीं आपको नहीं उसको ऐसा यूज करना, आप ठीक है आप बलून का खेलते फेंक, जो करना है करिए. अगर वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती तो क्या वो बच्चों के लिए, बच्चों के हाथ में जाती? खुद से सोचिए, इन लोगों के झूठे. सलीम ने क्या बोले थे, क्या पूछ रहे थे पुलिस वाले आके, और क्या क्या ले लेके चले गए इसमें? इनसे जो सवाल किए मुझे ज्यादा कुछ नहीं सुनाई दे रहे थे, मैं अंदर की तरफ थी. बस मैं यही सुनाई दे रहा था कि कुछ भोपाल के लोगों के नाम लिए जा रहे थे जिनसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे. आप इन्हें जानते हैं, आप उन्हें जानते हैं, यही सुनाई दे रहा था मुझे. और बाकी फिर मैं अंदर ही बैठी हुई थी, तो मेरे से वो नहीं था. बुक्स वगैरह जो उनको मिली और वो लेके गए और उसमें से सवाल करने लगे कि ये बुक्स कैसा है, ये बुक्स क्यों हैं. तो मैं यहाँ तक भी कह रही हूँ कि भाई ये मेरा हैंड रिटन है, मैंने लिखा है, मेरे हस्बैंड ने नहीं लिखा. उसके बाद भी क्यों लिखा, आप क्यों लिखे? तो मैं उनको रीजन बता रही हूँ. मैं एक लेक्चर सुन रही थी, उस लेक्चर का मैंने लिख लिया.
वो इतना इम्पोर्टेंट मेरे लिए नोट्स थे ही नहीं कि जिसको मैं संभाल के रखती, लिखा है पढ़ा है बस रखा है वो। देखिए हम लोग रिवर्ट है, वी हैड एक्सेप्टेड इस्लाम, और इस्लाम का दूसरी चीज़ों का हम स्टडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ों को ढूंढते हैं, सर्च करते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि उस चीज़ से हम लोग मुत्तफिक हैं, उस बात को हम मानने लगे हैं। वो बात ठीक है, हर आपको एक बुक की कोई ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें पसंद आएँ। आप बुक पढ़ रहे हैं, यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज़ जो हम लोगों ने फील करी वो मैं आपको बताऊं। हम लोग रिवर्ट हुए, मेरे हस्बैंड अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पढ़ते थे, इनके दिमाग में सवाल उठते थे कि भाई ये चीज़ ऐसी क्यों आई कुरान में, क्योंकि हम लोग रिवर्ट है तो चूंकि जाहिर सी बात है कि हमारे पास जो इस्लाम है वो एक नहीं कह सकते कि पुराना इस्लाम है या जो चलता आ रहा है वही इस्लाम हम फॉलो कर लें। हम उसकी एक एक चीज़ का रिसर्च कर रहे थे, ये चीज़ ऐसी है तो क्योंकि आसान नहीं होता रिवर्ट होना, अपने खानदान को, अपने माँ बाप को, अपनी पूरी चीज़ों को छोड़कर आना आसान नहीं होता। इट इज़ नॉट रियली वेरी इजी फॉर अस। तो सलीम को पूछे क्या यासिर एक ग्रुप है, एक टेररिज्म ग्रुप है यासिर बोल के, तो उसकी ताल्लुक में सलीम को उठा के लेके गए और इन्होंने कई सारे लोगों को वो ग्रुप में लाने को कोशिश कर रहे बोल के ऐसी सुना दे रहा आप। तो इसके बारे में कभी भी बातचीत हुई दोनों के, और पुलिस लोगों कुछ बोले क्या, सलीम क्या जवाब दिए थे ना? सवाल इनका यही था, यासिर को जानते हैं? तो मेरे हस्बैंड बोले किस यासिर की बात कर रहे हैं, मैं बहुत सारे यासिर को जानता हूँ। तो फिर उन्होंने नाम दिया, तो इन्होंने कहा कि ठीक है मैं यासिर को जानता हूँ क्योंकि उनकी वाइफ के ताल्लुक से मैं जानता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी वाइफ भी रिवर्ट है माशाल्लाह, तो इस लिहाज से मैं जानता हूँ, बस और कोई बात नहीं है। और मेरे पेरेंट्स ने एक छोटा सा कूलर भिजवाया था तो उन्हें वो देने के लिए यहाँ आए थे। तो रमज़ान के टाइम पे आए थे, तो एक फ़र्ज़ बनता है मुसलमान का मुसलमान के लिए कि नहीं आप यहाँ पे रुक सकते हैं। आप हम लोगों को ऐसा फील होता है बीइंग अ मुस्लिम के एक रिवॉर्ड है माशाल्लाह मेहमान नवाजी करना, तो आप रुकिए, अल्हम्दुलिल्लाह हम आपकी मेहमान नवाजी करते हैं क्योंकि रमज़ान चल रहे थे, दैट्स इट। इसके अलावा कोई चीज़ नहीं थी ऐसी जिसको इन लोगों ने इतना हाईलाइट करके रखा या इतना हाईलाइट करके बोला गेट टुगेदर हुए, ये हुआ। तो वाकई हमारे घर में रिवर्ट सिस्टर आए, रिवर्ट ब्रदर आए, तो क्या एक रिवर्ट फैमिली नहीं बन सकती? हमारा जब कोई नहीं होता तो हम एक दूसरे के आपस में भाई बहन होते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, बात करते हैं, अपने घर में बुलाते हैं। ये तो ऐसा कई समय से चला आ रहा है, कोई नई बात तो नहीं है कि भाई हमने कोई नया काम कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह तो वो इफ्तार पार्टी हुई माशाल्लाह, ईद पे भी हम लोगों ने पार्टी रिवर्ट्स को बुलाया, दावत करी, तो ये क्या बुरा हो गया खाना खिलाना? तो इसको लेके आप कैसा हाईलाइट कर सकते हैं? इस मसले में आप आखिर क्या बोलना चाह रहे हैं? इस दौरे पे आप क्या बोलना चाह रहे हैं? आपको क्या होना इसमें? मैं इस दौरे पे यही बोलना चाह रही हूँ कि जो हक है उसका साथ दीजिए, अल्लाह के यहाँ जवाब देना है, अल्लाह के यहाँ पकड़ होगी उन सब की जो नाहक का साथ दे रहे हैं। मेरे शौहर ने कुछ नहीं किया, उनके ऊपर बेबुनियाद इल्जाम लगाए गए हैं, उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए गए हैं और इट इज अ प्लान्ड एलिगेशन। उन लोग काफी टाइम से इस चीज को प्लान कर रहे थे और आकर उन्होंने एलिगेशन लगाए। मैं मानती हूँ मेरे हस्बैंड अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के लिए ये चीज रखते थे, भाई आप ऐसा मत करिए, ये गलत मत करिए, ऐसा करिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो लोगों के दिल में ये आता था इन्हों एक्सट्रीम जा रहे, इन्हों ज्यादा सोच रहे। मुसलमान कहते थे इस्लाम के बारे में नहीं सोचना जी, मुसलमानों के वर्ड्स में आपको बता रही हूँ।